Hello, my dear students. Welcome in the first segment of the chapter, the early Vedic period. The main highlights of today's segment are the advent of Aryans and the Vedic literature. The story of the advent of Aryans begins with the decline of the Indus Valley civilization, as according to historians that the invasion of Aryans might have played an important role in the decline of Indus Valley civilization. आर्यों के आगमन की कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के साथ शुरू होती है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने आर्यों के आक्रमण को इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का कारण माना है. What is the origin of the word Aryan? Let's understand it. The word Aryan is derived from the Sanskrit word Arya, which means unordinary. आर्यन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के आर्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सम्माननीय या असाधारण होता है. Aryans were Indo-European tribes from Central Asia who migrated to the Indian subcontinent looking for pastures. Aryans इंडो-यूरोपियन ट्राइब्स के थे जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में चरागाह की खोज में आए थे. Did you know how the Aryans came to India? They came to India through the Hindu Kush mountain and were subsequently referred to as Indo-Aryans. After coming to the subcontinent, they came into conflict with the indigenous people. Aryans defeated them and referred them as Das or Dasyus. Aryans भारत में हिंदू कुश पर्वत को पार कर आए थे. बाद में उन्हें इंडो आर्यंस कहा जाने लगा. यहाँ आने के बाद आर्यंस का युद्ध यहाँ के लोगों से हुआ, जिसमें आर्य विजयी हुए और यहाँ के लोगों को दास कहने लगे. Till now we understood about the advent of Aryans. Now it's time to understand about the time period. The Vedic period is divided into two periods: early Vedic period 1500 BCE to 1000 BCE, later Vedic period 1000 BCE to 600 BCE. अर्ली वैदिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मवर्त. वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड इन डिटेल. इनिशियली इंडो आर्यन सेटल इन सप्त सिंधु रीजन. व्हाट इज सप्त सिंधु रीजन? सप्त सिंधु रीजन मीन्स द लैंड ऑफ 7 rivers. Those rivers were गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, रवि, चेनाब एंड झेलम. प्रारंभिक रूप से आर्य जहाँ पर सेटल हुए थे उसे सप्त सिंधु कहा गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में 7 नदियाँ प्रवाहित होती थी, जिनका नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज था. दे नेम दिस लैंड एज ब्रह्मवर्त, विच मीन्स द अबोर्ड ऑफ गॉड. इसका नाम ब्रह्मवर्त रखा गया, जिसका अर्थ देवताओं का निवास स्थान होता है. ग्रेजुअली द आर्यंस स्प्रेड फ्रॉम द सप्त सिंधु रीजन टू द प्लेन्स एंड द वैलीज ऑफ रिवर गंगा. धीरे धीरे आर्यों ने अपना विस्तार गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ शुरू किया. वैदिक लिटरेचर. As you all know that literature is the mirror of society. We can gain more knowledge about Aryans through their literature. It comprises 4 Vedas, the Brahmanas, the Upanishads, the Puranas, the 2 great epics, Ramayana and Mahabharata. They were written in verse and in Sanskrit language, the spoken tongue of Aryans. साहित्य समाज का दर्पण होता है. वैदिक पीरियड को समझने के लिए हमें उसके साहित्य को जानना जरूरी है. वैदिक पीरियड में साहित्य अपने चरम पर था. 4 प्रमुख वेद, ब्राह्मणास, उपनिषद, पुराणास, महाकाव्य, महाभारत और रामायण की रचना इसी काल में हुई थी. इनकी रचना काव्य में हुई. आर्यों की बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उनकी सारी रचनाएं संस्कृत में हुई. डिड यू नो दैट वेदास आर ऑल्सो नोन एज श्रुति, विच मीन्स that which is heard. Let's understand it more in detail. The word Veda originated from the Sanskrit word Vid, meaning knowledge. वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है. There are 4 Vedas. ऋग्वेदा. ऋग्वेदा is the oldest of the 4 Vedas. ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है. It was composed in early Vedic period. इसकी रचना early Vedic period में हुई थी. The ऋग्वेदा consists of hymns called the Suktas, meaning well said. ऋग्वेद में भजनों का उल्लेख है, जिसे सुक्तास कहा जाता है, जिसका अर्थ well said होता है. Let's understand in detail about hymns. Hymns are prayers offered to Agni, the god of fire, Indra, the warrior god, Som, a plant from which a special drink was prepared. Hymns को भजन कहा जाता था. अग्नि और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया था, और सोम नामक पौधे के लिए भी भजन लिखा गया है. Samaveda. Samaveda is the collection of verses from the Rig Ved for liturgical purpose. सामवेद से तात्पर्य वह ग्रंथ है जिसके मंत्रों को गाया जा सके.
इसके मंत्रों को ऋग्वेद में लिखा गया है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ज्ञान पद्धति के निश्चित मंत्र हैं। इसके मंत्रों को यज्ञ अनुष्ठान के समय गाया जाता था। यजुर्वेदा comprises of sacrificial formula in prose and verse। यजुर्वेदा में यज्ञ विधि के बारे में विस्तार से गद्य और पद्य में लिखा गया है। अथर्ववेदा mainly contains magical charms and invocations। अथर्ववेद में ज़्यादातर तंत्र मंत्र के मंत्रों का वर्णन है। Interesting facts about Vedas। Vedas were transmitted orally from one generation to the next। It was only many centuries later that the Vedas were written down। वेदों का अध्ययन मौखिक रूप से विद्यार्थियों को करवाया जाता था और बहुत शताब्दियों के बाद इसे लिखा गया। The most amazing fact is that the 4 Vedas were composed in different periods। चारों वेदों की रचना विभिन्न समयों पर हुई है। ऋग्वेद की रचना अर्ली वैदिक एज में हुई और 3 वेदों की रचना बाद में हुई। It is for this reason that the early Vedic age is also known as ऋग वैदिक एज। ऋग्वेद की रचना अर्ली वैदिक काल में हुई थी, इसी के आधार पर उसे ऋग वैदिक युग भी कहा जाता है। Attached to each Vedas are several expounding prose texts called ब्राह्मणास। वेदों की रचनाओं को गद्य में भी लिखा गया है जिसे ब्राह्मणास कहते हैं। Concluding portion of the ब्रह्मणास are called अरण्यकास। ब्रह्मणास के समापन को अरण्यका कहा जाता है। What is अरण्यका? अरण्यका means forest books। The Upanishads are the commentaries attached to Aranyakas। They are also referred to as Vedanta, meaning end of Vedas। उपनिषद अरण्यका के साथ लिखे होते थे जिन्हें वेदांता भी कहा जाता था, जिसका अर्थ वेद की समाप्ति होता था। Puranas include encyclopedic literature on numerous subjects such as the philosophy, theology, cosmology, astrology, mineralogy, science, medicine, saga, and the folk tale of various genre and the genealogies of deities, kings and heroes। अगर हम पुराण की बात करें तो इसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया गया है, जैसे दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, खगोल शास्त्र, विज्ञान, स्टोरीज, लोक कथा, लिटरेचर, सबके बारे में वर्णन किया गया है। द प्रोमिनेंट एपिक्स ऑफ इंडियन लिटरेचर आर द महाभारत एंड रामायण। प्रमुख महाकाव्यों में महाभारत और रामायण का उल्लेख है। महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय सेज व्यास एंड इज अ लेजेंड अबाउट द भरत डायनेस्टी। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत में लिखा है, जिसमें भरत डायनेस्टी के बारे में वर्णन किया गया है। रामायण इज रिटन बाय द सेज वाल्मीकि एंड इज अ क्रॉनिकल ऑफ लॉर्ड राम द प्रिंस ऑफ अयोध्या। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा है, जिसमें अयोध्या के राजकुमार राम जी के जीवन की गाथा है। द वैदिक लिटरेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इमेंस रिच एंड वेरिड कल्चर। It laid the foundation of Indian culture and heritage. That's all for today's segment. In the next session, we would understand about the political life of Aryans. Thank you all.